Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the structure of protein, size of protein and shape of protein. कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि अगर एक प्रोटीन में ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे प्रोटीन का साइज़ बड़ा होगा, कम अमीनो एसिड होंगे प्रोटीन का साइज़ छोटा होगा. इट मीन साइज ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड की तादाद पर डिपेंड करता है. एज देयर विल बी मोर अमीनो एसिड्स द साइज ऑफ प्रोटीन इट विल गेट लार्जर. एज देयर विल बी लेस अमीनो एसिड द साइज of the protein it will be smaller. And the shape of protein, it depends upon the number of amino acids as well as type of amino acid, कि कौन से अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में मिले हैं. तो on the basis of structure proteins are discussed at 4 levels: primary structure of protein, secondary structure of protein, tertiary structure of protein, and quaternary structure of protein. First of all, primary structure of protein. Primary structure of protein, it is the simple structure. Simply it is specific arrangement of amino acids in a protein molecule. कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड का खास तरतीब से होना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. कि फॉर क्यों? बिकॉज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के प्रॉपर काम करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये इट इज़ एसेंशियल, ये लाजमी है, सो दैट अमीनो एसिड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस, इन प्रॉपर ऑर्डर, खास तरतीब से मौजूद हो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज जेल एंड द अदर इज लेग. Gel and leg, these are 2 different words. हालांकि आप देखें there are 3 letters in gel, the same 3 letters are present in the leg. leg में भी वही 3 letters हैं, but they have different meaning. क्यों? Because due to different arrangement, different sequence of letters. letter जो है कि arrangement इधर different है, इधर different है. So, if there are 2 protein molecules, अगर 2 protein molecules हैं, they have the same number of amino acids and same type of amino acids. 2 प्रोटीन हैं जिनमें अमीनो एसिड की तादाद भी बराबर है, अमीनो एसिड की टाइप्स भी वही एक जैसी हैं, स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्यों? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन, उनमें अरेंजमेंट डिफरेंट होगी. एफ सांगर, नेम ऑफ बायोकेमिस्ट, ये बायोकेमिस्ट का नाम है. ही स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन मॉलिक्यूल. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है. I have told you that all the hormones, they are protein in nature. Chemically protein है, except for sex hormone, mass sex hormone. So it means insulin protein. क्या काम करता है? When there is excess glucose in our body, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, then insulin is secreted from the beta cells of pancreas. लबलबा, पैंक्रियास के, हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियास लबलबा है. तो लबलबा पैंक्रियास के बीटा सेल्स
क्या करेंगे, इंसुलिन बनाएंगे, सक्रीट करेंगे। इंसुलिन कब सक्रीट होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा, इंसुलिन विल एंटर द ब्लड and it will convert the excess glucose into glycogen. Glycogen will be stored in the liver and skeletal muscles. यही जब पास कर चुका बुला दो, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। कि स्टार्ट ही हो रहा ना। Insulin is made up of, because insulin is protein, so it is made up of amino acids. How many amino acids? Insulin is made up of 51 amino acids. These 51 amino acids, they have been arranged on two polypeptide chain. यही 51 amino acid दो polypeptide chain पर है. One is alpha polypeptide chain, other is beta polypeptide chain. Alpha polypeptide chain contain 21 amino acid and beta polypeptide chain contain 30 amino acids. It means ये भी polypeptide chain है, ये भी polypeptide chain है. These two polypeptide chains have been attached with each other by means of 3 disulfide bond. एक डाइसल्फाइड SS डाइसल्फाइड, एक डाइसल्फाइड, दूसरा तीसरा, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड इंटरचेन है, इंटरचेन यानी दो चेन्स के दरमियान, एंड 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड इंट्रा चेन, एक चेन के अंदर मौजूद है। बहरहाल ओवरऑल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो एंड इन अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन 21 amino acids have been arranged orderly यानी sequential manner यानी तरतीब से। बीटा में भी 30 amino acid तरतीब से मौजूद हैं। 21 और 30 it becomes 51. Similarly, there is another protein that is named as hemoglobin. Hemoglobin, I have told you, it is protein, oxygen carrying protein present in the red blood cells of the animals. Hemoglobin is made up of 574 amino acids. हीमोग्लोबिन को Hb से जाहिर किया जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इट इज डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड। तो हीमोग्लोबिन में ये 574 अमीनो एसिड्स हैं। These 574 amino acids have been arranged on 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta polypeptide chain. Each alpha polypeptide chain contains 141 amino acid and each beta polypeptide chain contains 146 amino acids. अगर इन्हें आप काउंट करें इन सबको, they become 574 amino acids. And in all the 4 polypeptide chains, the amino acids, they have been arranged orderly in a sequence, तरतीब से मौजूद है, प्रॉपर अरेंजमेंट में मौजूद है। बट समटाइम्स, हाँ बल्कि अब इन्हें कौन सी चीज खास तरतीब से रखती है इन अमीनो एसिड्स को? दैट अरेंजमेंट कम्स फ्रॉम द डीएनए, दैट अरेंजमेंट कम्स फ्रॉम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल। हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है। कौन सी चीज लेकर आती है? मैसेंजर आरएनए लेकर आता है।
कहाँ लेकर जाता है? साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म। क्या इंफॉर्मेशन होती हैं? मैसेंजर आरएनए डीएनए से क्या इंफॉर्मेशन ले जाता है? कौन सी? वो इंफॉर्मेशन होती हैं हाउ टू प्लेस ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड इन प्रॉपर सीक्वेंस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड को किस तरतीब से रखा है। बहरहाल वो इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है। बट इफ देयर इज चेंज इन डीएनए, डीएनए में अगर चेंज हो जाए, डीएनए में चेंज को हम नाम देते हैं म्यूटेशन, स्मॉल चेंज इन जीन या स्मॉल चेंज इन डीएनए, दैट इज नेम्ड एज म्यूटेशन। अगर डीएनए में म्यूटेशन हो जाए, तब्दीली हो जाए, तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें तब्दीली होगी, मैसेंजर आरएनए गलत इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, और इस तरह से प्रोटीन में अमाइनो एसिड भी सही तरतीब से नहीं होंगे। जब प्रोटीन में अमाइनो एसिड सही तरतीब से नहीं होंगे, इट विल फेल टू फंक्शन प्रॉपरली, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। सेम error take place sometimes take place in the structure of the hemoglobin. अब क्या होता है, अगर डीएनए में म्यूटेशन हो गई, वो डीएनए वो जीन जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, तो इसमें भी एरर आ जाएगी। कहाँ एरर आ जाएगी? इसकी बीटा चेन में एरर आ जाती है। एक जगह पर जो है ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड मौजूद होता है, ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। अगर चेंज आ जाए डीएनए में, अब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी, ग्लूटामिक एसिड की बजाय एक और अमीनो एसिड आ जाता है, वेलाइन अमीनो एसिड। जब वेलाइन अमीनो एसिड आ जाए, मतलब ये कि 574 में से सिर्फ एक अमीनो एसिड भी अपनी जगह चेंज कर जाए, तो इट विल रिजल्ट इन द नॉन फंक्शनिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काम नहीं करेगा, एरर हो चुकी है। हीमोग्लोबिन पहले नॉर्मल हीमोग्लोबिन डिस्क शेप था, अब क्या हो जाएगा, जब इसमें ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलाइन अमीनो एसिड आ गया, अब ये हो जाएगा सिकल हीमोग्लोबिन। सिकल मीन दरांती की तरह का हो जाएगा, सिकल शेप। जब हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो गई, यानी डिस्क शेप से सिकल शेप में तब्दील हो गया। क्यों तब्दील हो गया? क्योंकि इसके बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलाइन अमीनो एसिड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि डीएनए में तब्दीली हो गई। और फिर क्या हो गया? इट विल रिजल्ट इन ए डिजीज दैट इज नेम्ड एज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया कहते हैं खून की कमी। सिकल सेल एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन सिकल शेप्ड हो गया, इट विल नॉट कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, एंड इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।